Good morning, students. Today we are going to understand dissolution of partnership firm. Students, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस. लेट्स स्टार्ट dissolution of partnership firm. Introduction. So far we have undertaken the study in context to continuation of business in spite of changes in partnership due to the admission of a partner or retirement or death of a partner. स्टूडेंट्स, हमने पार्टनरशिप में चेंज देखा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के समय पर और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर के समय पर. This brings to the end of a partnership, but it is not dissolution of a partnership firm. Students, इसकी वजह से पार्टनरशिप का तो अंत होता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होता. The partnership firm and partnership automatically comes to an end when the current business is closed and all partners get separated. स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप का अपने आप अंत हो जाता है जब करंट बिजनेस क्लोज हो जाता है और सारे के सारे पार्टनर्स सेपरेट हो जाते हैं, मींस अलग हो जाते हैं. We will study the transactions related to dissolution in this chapter. हम dissolution से related transactions के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Meaning of dissolution. Dissolution means end of existence. Dissolution का मतलब होता है existence का अंत. Here, dissolution is to be studied in the context of dissolution of partnership and a partnership firm, where two issues are considered for dissolution. यहाँ पर दो इश्यू दिए हुए हैं डिसोल्यूशन के लिए, उन्हें ध्यान में लिया जाता है. फर्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म. सेकेंड वन इज डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप. फर्स्ट समझेंगे. When a partnership firm closes down its business on a permanent basis or a firm becomes non-existent from legal point of view, it is known as dissolution of a partnership firm. जब कोई बिजनेस है वो परमानेंटली बंद हो जाता है, यानी कि उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता, तब उसे बोला जाता है कि डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म हो गया. In brief, when a running firm is closed and its business activities are closed, it is dissolution of a partnership firm. शॉर्ट में समझे, जब कोई रनिंग फर्म है वो बंद हो जाती है और उसकी सारी की सारी बिजनेस एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं, तब उसे कहा जाता है कि पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हुआ. अब सेकेंड समझेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप. व्हेन एक्सेप्ट वन पार्टनर, all partners get separated from a firm. This is also an end of a partnership. जब एक पार्टनर के अलावा सभी के सभी पार्टनर्स सेपरेट हो जाते हैं, तब पार्टनरशिप का अंत होता है. If this continues, one partner will become the owner of sole proprietor firm. यदि ये एक पार्टनर चालू रखता है बिजनेस को तो वो अकेला मालिक होता है उस फर्म का. इन दिस केस ऑल्सो ए पार्टनरशिप फर्म गेट्स डिसॉल्व्ड. इस केस में भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है. When running business of the firm is sold to a joint stock company, this is also dissolution of a partnership firm. जब रनिंग बिजनेस को किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी को सोल्ड कर दिया जाता है, तब भी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है. अब समझेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड पार्टनरशिप.
It is essential to understand the meaning of firm dissolution and partnership dissolution, which is as follows. ये जरूरी है कि हमें फर्म डिसोल्यूशन का और पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का अर्थ पता हो, जो इस तरह से है. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. As per section 39 of Indian Partnership Act, when all partners get separated through dissolution of firm that brings end of their partnership, it is known as dissolution of firm. Students, Indian Partnership Act के section 39 के अनुसार सारे के सारे पार्टनर्स अलग हो जाते हैं, तब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है, जिससे पार्टनरशिप का भी एंड हो जाता है और फर्म भी डिसॉल्व हो जाती है. In this manner, when partnership is dissolved and close down the firm, it is dissolution of firm. जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाए और वो फर्म को बंद कर दे, तो इससे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है. The business of the firm is closed down in these circumstances. इन परिस्थितियों में फर्म का बिजनेस बंद हो जाता है. As a result of dissolution, liabilities of the firm are paid from the realization of the sale of assets. डिसोल्यूशन के परिणाम स्वरूप सभी एसेट्स को सोल्ड करके उनकी रियलाइजेशन वैल्यू में से फर्म की लायबिलिटीज को पे किया जाता है. From the remaining surplus capital of partners is redeemed as per their contract. और जो पार्टनर्स का सरप्लस कैपिटल है वो एज पर कॉन्ट्रैक्ट वापस कर दिया जाता है. When the entire business of the firm is sold, that is also dissolution of a partnership firm. जब फर्म के पूरे बिजनेस को सोल्ड कर दिया जाता है, तब भी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है. बी समझेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. When business is not closed down due to retirement of a partner, death of a partner, insolvency of a partner, or due to any other reasons, and remaining partners keep business continuous, it is a dissolution of old partnership. जब बिजनेस को पार्टनर के रिटायरमेंट के कारण, पार्टनर की डेथ के कारण, पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने के कारण अथवा किसी भी रीजन से बंद न किया जाए और बाकी के पार्टनर उसे चालू रखें, तो ओल्ड पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है. Except outgoing partners, remaining partners keep business continuous. Consequently, new partnership take place. Remaining partners उस बिजनेस को चालू रखते हैं और नई पार्टनरशिप उसकी जगह पर आती है. Generally, the proportion of partnership changes between continuing partners. जनरली क्या होता है कि पार्टनरशिप चेंज होती है तो उनका प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में. इन दीज सर्कमस्टेंसेस पार्टनरशिप फर्म डज नॉट गेट डिसॉल्व्ड. इन परिस्थितियों में पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्यूशन नहीं होता. But new partnership comes into existence due to reorganization of partnership. लेकिन न्यू पार्टनरशिप आती है पार्टनरशिप के रीऑर्गेनाइजेशन होने के कारण. मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. As per Indian Partnership Act 1932, there are two methods of dissolution of partnership firm. Indian Partnership Act 1932 के अकॉर्डिंग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की टू मेथड्स हैं. A. Normal dissolution or dissolution without interference of court.
बी डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। फर्स्ट ए को समझेंगे, नॉर्मल डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट। थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व्ड विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट। नीचे दी गई किसी भी मेथड से विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट डिसोल्यूशन may be possible। First, by agreement, when all partners agree to dissolve the firm, partnership firm can be dissolved at any point of time. It is voluntary dissolution. By agreement, सारे के सारे पार्टनर्स चाहते हैं कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाए, तो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाता है और ये वॉल्यूंटरी डिसोल्यूशन कहलाता है। Second, dissolution as per contract. Dissolution of a partnership firm can be done on the basis of predetermined contract between the partners. पार्टनर्स के बीच में जो प्री डिटरमाइंड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके बेस पर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है। पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो पहले से कि ये समय पूरा होने पर या ये काम होने पर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, तो पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिया जाता है। Third, dissolution as per act. In the following conditions, there is compulsory dissolution by the act. नीचे दी गई परिस्थितियों के अनुसार एक्ट के अकॉर्डिंग कंपल्सरीली डिसोल्यूशन हो जाता है। A, when all partners of the firm become insolvent, or except one, all partners become insolvent. जब सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएं या एक के अलावा सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएं तब। बी, when business of firm becomes illegal, this also brings dissolution of a partnership firm. स्टूडेंट्स, जब जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस इलीगल बन जाता है तब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। Fourth, dissolution on happenings of certain contingencies. If constituted for a fixed term, by the expiry of that term, if constituted to carry out specific aim, by the completion thereof. Students, जब किसी फिक्स्ड टर्म के कारण पार्टनरशिप की गई हो तो वो टर्म एक्सपायर हो जाती है तब डिसोल्यूशन हो जाता है। यदि कोई स्पेसिफिक एम के लिए पार्टनरशिप बनाई गई हो और वो एम कंप्लीट हो जाता है तब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाता है। Fifth, dissolution by notice, where the partnership is at will. The firm may be dissolved by any partner giving notice in writing to all the partners of his intention to dissolve the firm. The firm is dissolved as from the date mentioned in the notice as the date of dissolution, or if no date is so mentioned, as from the date of the service of the notice. स्टूडेंट्स, किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर चाहता हो डिसॉल्व करना तो वो बाकी के सभी पार्टनर्स को नोटिस देकर फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। डिसॉल्व की डेट अगर मेंशन की गई हो तो नोटिस के अकॉर्डिंग उस डेट पर डिसॉल्यूशन हो जाता है, नहीं तो जिस दिन नोटिस दिया गया है उस डेट को पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्यूशन हो जाता है। बी, डिसॉल्यूशन बाय द कोर्ट। When any partner file a suit for dissolution of a firm on any of the following grounds and the court orders to dissolve the firm.
स्टूडेंट्स, जब कोई पार्टनर सूट फाइल करता है फर्म के डिसॉल्यूशन के लिए तो नीचे के अनुसार कोर्ट ऑर्डर दे सकती है फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। फर्स्ट, व्हेन एनी पार्टनर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि कोई पार्टनर है वो अनसाउंड माइंड का बन जाता है, यानी कि पागल जैसा बन जाता है। सेकेंड, व्हेन ए पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज ए पार्टनर, जब कोई पार्टनर परमानेंटली असमर्थ हो अपने कर्तव्यों को करने में, अपने ड्यूटीज को परफॉर्म करने में, तब थर्ड, व्हेन ए पार्टनर अंडरटेक्स मिसकंडक्ट अगेंस्ट पार्टनरशिप फर्म और अगेंस्ट बिजनेस ऑफ फर्म, जब कोई पार्टनर कुछ गलत करता है पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट में या फर्म के बिजनेस के अगेंस्ट में, तब। फोर्थ, व्हेन ए पार्टनर विलफुल्ली एंड persistently breaches the partnership agreement, जब कोई पार्टनर इरादे पूर्वक और जानबूझकर पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ब्रीच करता है, तब। फिफ्थ, when a partner transfers his whole interest in the partnership to a third party without the consent of other partners, जब कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर्स की सहमति के बिना थर्ड पार्टी को अपना पूरा का पूरा इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देता है, यानी कि अपनी जगह पर किसी दूसरे को रख लेता है, तब। सिक्स्थ, when a firm continuously incurs losses and is unable to run a business due to loss, जब कोई फर्म कंटिन्यूअसली लॉस कर रही हो और लॉस के कारण बिजनेस को चला पाने में असमर्थ हो, तब। सेवंथ, when the court finds any other ground to be just and equitable for the dissolution of the firm, और यदि कोर्ट को ऐसा लगता हो कि इस न्यायप्रियता के कारण फर्म का डिसॉल्यूशन होना जरूरी है तो वो अपने अकॉर्डिंग उसे डिसॉल्व कर सकती है। स्टूडेंट्स, अब समझेंगे ट्रांजैक्शंस ऑफ डिसॉल्यूशन। When first transaction is when assets values are closed and transferred to realization अकाउंट। स्टूडेंट्स, एसेट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है और जब उन्हें क्लोज किया जाता है तो एसेट्स क्रेडिट हो जाती हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा टू एसेट्स अकाउंट। सेकेंड, उसमें फर्स्ट, व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज रियलाइज्ड। स्टूडेंट्स, यदि एसेट्स की वैल्यू हमें मिलेगी यानी कि अमाउंट मिलेगी तो कैश और बैंक अकाउंट हमारे पास आएगा, तो कैश और बैंक अकाउंट होगा डेबिट टू, हमने एसेट्स को रियलाइजेशन के सामने बंद किया था इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। बी, व्हेन एनी पार्टनर
is taken the assets, अगर कोई पार्टनर टेक ओवर करता है एसेट्स को तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट। और क्रेडिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को, टू रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड, when liabilities values are closed and transferred to realization account, स्टूडेंट्स लाइबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट, जब इन्हें ट्रांसफर किया जाएगा और क्लोज किया जाएगा तो लाइबिलिटीज हो जाएंगी डेबिट। लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फोर्थ में ए, when liabilities are paid। स्टूडेंट्स पे करने पर हमारे पास से कैश और बैंक जाती है, इसलिए कैश और बैंक को क्रेडिट किया जाएगा और हमने लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन के सामने बंद किया था तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। बी, when any partner ready to pay liabilities then realization account debit to partners capital account। next, when unrecorded assets value is realized। सेम एंट्री स्टूडेंट्स जैसी हमने एसेट्स को रियलाइजेशन करने की एंट्री दी थी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री, when unrecorded liabilities value is paid, realization account debit to कैश और बैंक अकाउंट। स्टूडेंट्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा व्हेन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट and reserves are distributed।
स्टूडेंट्स जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा या रिजर्व होगा उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, उसे करेंगे डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। When accumulated loss and expenses are distributed, then entry will be students partners capital account debit to accumulated loss और expense account। स्टूडेंट्स डिजोल्यूशन एक्सपेंस को पे किया जाए तो अभी सेम एंट्री देंगे जिस तरह से हमने लायबिलिटीज को पे किया। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा टू कैश और बैंक अकाउंट। व्हेन देयर इज लॉस पार्टनर्स capital account debit to realization account when there is profit realization account debit टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स इस तरह से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। स्टूडेंट्स डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जनरली 3 अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट and third one is cash or bank account। इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स जब हम बिग सम्स करेंगे, लॉन्ग सम्स करेंगे तब ध्यान में देंगे। स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस। थैंक यू स्टूडेंट्स।